Hello everyone. Welcome to the series of project dissertation and implementation introduced by Technolytics Take IT Easy. In this video series, we are going to learn about how to complete project dissertation successfully. This video series is important for the students who are going to make their project in the UG or PG level, especially in the final year. Points to be covered in this video: project topic selection, project type, title page, pro forma, live company certificate if any, college certificate, declaration, and acknowledgement. Points to remember: project diary. Yes, students, you have to maintain a project diary to keep the record of the important points given by your guide. Okay, so like you can mention the topic to be discussed and the updations to be suggested by the guide. The deadline is when you have to submit your project things. Everything you can mention in your project diary so that it will be very, very helpful for you for the further process to be continued. Next topic important is marks evaluation. See, in your project report, it detailed things should be mentioned. Like it should not happen कि आपने सिर्फ कोडिंग लिखा है, कोडिंग का प्रिंट आउट लिया है और फिर आपने आपके प्रोजेक्ट डिसर्टेशन में बस उसी को रखा है. So ये नहीं चलेगा. Each and everything you have to mention properly, and then only it will be useful for the evaluator to give marks to your project. Next important point to remember is use of appendices. See, important points you will highlight in your project body. Yeah, but detailed information about that important points should be written in the appendices. Like you can mention detailed database, design, or maybe you can mention some important terms definition or the Gantt chart you can put in the appendices, which you can, refer as a details of your project. So these 3 points you have to remember, like keep the project diary, give proper content for the marks evaluation, and use of appendices. Next is project topic selection. Preparation before selecting the project topic. Research many projects on your area of interest. See, without research you cannot develop a project. हर एक प्रोजेक्ट बनाने के पहले आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा. रिसर्च करने के लिए यू कैन रेफर scholar.google.com. ये गूगल का बहुत अच्छा एड ऑन है where you can go and find infinite projects. Also you can use many of the search engines, या फिर आपके लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो एलुमनाई स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास से आप उनका प्रोजेक्ट रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो और देख सकते हो हाउ दे हैव डेवलप्ड इट. Secondly, you can present at least one research paper. Research paper जैसे कि national या international conferences में आप present कर सकते हैं, so that you will get an idea कि abstract कैसे लिखते हैं, फिर background study कैसे होती है, history के लिए हमें क्या क्या study लिखनी पड़ेगी, या फिर how to analyze our primary data, या फिर कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस क्या होते हैं. So n number of things you will come to know once you will present one research paper at least in a year. Next is project guide. Yes, बहुत important aspect है किसी भी project का, क्योंकि while developing a project बहुत सारे important tips या you can say बहुत सारी चीजें आप नई नई सीखते हो just because of a experienced project guide. So if you have a choice to select a project guide, please wisely select it. Next is project team members.
See, I will advise you uh, that you only being a single student can develop a project. But if you want some team members, like more than uh, one student, if developing a single project, then remember उस project का scope उतने time multiple हो जाएगा. For example, अगर project 200 marks का है और यहाँ पे 3 students काम कर रहे हैं, तो अब वो प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन 600 मार्क्स होगा. तो आपका स्कोप भी उतना वाइड होना पड़ेगा और आप पे उतने यूटिलिटीज और बहुत सारी चीजें और भी ऐड करनी पड़ेगी. तो इस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड द टीम मेंबर्स. ऑल्सो टीम मेंबर्स डिसाइड करते वक्त फ्रेंडशिप या फिर किसी को बुरा लगेगा ये सब बिल्कुल मत सोचना. बट जो ऑनेस्ट है, जो सिंसियर है, जो डेडिकेटेड है, जो पंक्चुअल है, ये सारे क्वालिटीज देख के यू कैन डेफिनेटली डिसाइड प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स. सो ये था प्रिपरेशन बिफोर सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट सिलेक्शन टिप्स. सो योर प्रोजेक्ट शुड बी इनोवेटिव. इनोवेटिव मतलब कुछ तो नयापन आपके प्रोजेक्ट के थ्रू ऑडियंस को या यूजर को मिलना चाहिए. सो लाइक कॉमन प्रोजेक्ट भी आप डेवलप कर रहे हो तो कुछ तो एक नई यूटिलिटी जो इनोवेटिव यूटिलिटी है, कुछ तो फर्स्ट टाइम आपने इन्वेंट किया है उसको, जो बेनिफिशियल है यूजर के लिए. इस टाइप का आप डेफिनेटली यू हैव टू थिंक सम इनोवेशन शुड बी देयर. प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. देखो, हमारे आसपास इतने सारे प्रॉब्लम्स डे टू डे बेसिस पे हमें दिखते हैं. सो अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ, इसके लिए कुछ तो एप्लीकेशन बन सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंसेशन फॉर्म जो जनरली कॉलेजेस में मिलता है, अगर इजीली अवेलेबल नहीं होता, आपको काफी लाइन लगानी पड़ती है और उसके बाद भी एक सर्टेन टाइम के बाद काउंटर बंद हो जाता है. सो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है. सो इस प्रॉब्लम को कंसिडर करके यू कैन मेक दिस प्रोसेस ऑटोमेटेड and you can make any mobile or Android or iOS app on it. और ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. So always try to search for the solution to any of the problem through your application. Again, it should be useful for the society. सोसाइटी के लिए कुछ तो यूजफुल अगर आप कुछ दे सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो. जैसे कि स्ट्रीट पेट्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, सॉरी. सो उनके लिए आप कुछ कर सकते हो. तो देखो, दिव्यांगों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, सो यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स फॉर देम. और इन सोसाइटी देर आर सो मेनी पीपल हु नीड सम हेल्प. सो इन दैट केस सर्टेन एनजीओज आर देयर. सो उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली दिस एस्पेक्ट ऑल्सो यू कैन थिंक फॉर. एंड द लास्ट इज पैशनेट टू लर्निंग सर्टेन डोमेन. अगर आप चाहते हो कि किसी डोमेन को आप लर्न करो, सीखो. जैसे अगर मुझे पाइथन सीखना है, सो आई कैन यूज पाइथन एज अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप माई प्रोजेक्ट. सो ऑल these things, all these tips are there for selecting project topics. Now, project type. There are two types of project. One is live और one is self-developed. लाइव प्रोजेक्ट मतलब आप किसी के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हो. सो अकॉर्डिंग टू दैट यूजर्स रिक्वायरमेंट यू विल बी डेवलपिंग योर प्रोजेक्ट. और सेल्फ डेवलप मतलब you yourself only creating your requirement and accordingly you are developing the project. So ये दो डिफरेंस होते हैं. ये दो टाइप के प्रोजेक्ट्स है. लाइव प्रोजेक्ट्स को जनरली ज्यादा वेटेज दिया जाता है. द रीजन इज दैट इट इज बीन यूज्ड बाय द कस्टमर और इसके लिए थोड़ा सा वेटेज इसमें ज्यादा होता है. नाउ स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू वर्क इन द एरियाज लिस्टेड बिलो. यहाँ पे एरियाज दिए हैं जैसे कि डेस्कटॉप डेवलपमेंट आप कर सकते हैं. सिंगल डेस्कटॉप पे सिंगल एप्लीकेशन यू कैन डेवलप. वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन. मोबाइल ऐप जैसे एंड्रॉयड है, iOS है. क्लाउड डेवलपमेंट यू कैन मेक. मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कॉन्सेप्ट यूज करके आप अच्छा सा कोई सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं. एम्बेडेड सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको कंसीडर करके आप कोई
मशीन बना सकते हैं, आप कोई सिस्टम बना सकते हैं, सर्च इंजिन्स बना सकते हैं, यू कैन मेक कंपाइलर्स, गेम डेवलपमेंट लाइक यूजिंग सम यूनिटी सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, सिक्योरिटी बेस्ड डेवलपमेंट, चैटबॉट. सो ये वेरियस टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं. सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम. नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त सबसे फर्स्ट पेज होता है आपका टाइटल पेज. तो ये टाइटल पेज का फॉर्मेट मैंने यहाँ दिखाया है. सो दिस इज जस्ट अ सैम्पल टाइटल पेज. एवरीवेयर इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा, जिसमें मैंने लिखा है कि 24 साइज होगी, बोल्ड होगा, अपर केस में लिखा जाएगा ये. देन हियर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट रहेगा जिसकी साइज यहाँ पे बोल्ड होगी 12 और यहाँ पे 12 नॉर्मल होगी. ये पूरा जो भी टेक्स्ट लिखा है ये पूरा टाइम्स न्यू रोमन में होगा. ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन सो क्लियरली. देखो यहाँ पे कॉलेज लोगो होगा, तो यहाँ पे यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द थिंग्स एंड जैसा भी फॉर्मेट दिया है एज इट इज इस फॉर्मेट को आप रिप्लेस करके आपका फर्स्ट टाइटल पेज जो कि गोल्डन एम्बॉस्ड होता है ब्लैक पेज पे, उस हिसाब का आपका ये मैंने एक सैंपल दिया है. सेम पेज इसके सैंपल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड किए हैं फॉर योर रेफरेंस. So from there you can download it. So this is your title page of your project. So title page के बाद आता है प्रोफोमा फॉर्मेट. प्रोफोमा फॉर्मेट क्या है? तो ये अप्रूवल है. दिस इज एन अप्रूवल फ्रॉम योर प्रोजेक्ट गाइड. So you have to mention all your details like your PNR number, roll number, name of the student, title of the project, name of the guide, okay, teaching experience of the guide. Uh, is this your first submission? जैसे आप प्रोफोमा फॉर द फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हो गाइड को तो यस पे जाएगा, अगर सेकंड टाइम होगा तो नो पे जाएगा. सिग्नेचर्स आएंगे रिस्पेक्टिव. तो ये प्रोफोमा जब एक बार फाइनल हो जाता है, so afterwards there is no scope to change your project, to change your partner or even to change your project guide. So इसके लिए ये प्रोफोमा सबसे important part है. So here I have just given the sample of the proforma. Again, this sample I have included in the description box. So आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं. So first we had seen title, now we have seen proforma. Next is live project certificate. जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक लाइव और एक सेल्फ डेवलप. तो लाइव प्रोजेक्ट में आपको जिस कस्टमर के लिए आप बना रहे हैं उसके लेटर हेड पे आपको एक टेंटेटिवली इस टाइप का मैटर टाइप करके लेना है और नीचे वहां पे प्रोप्राइटर की सिग्नेचर और स्टैम्प. स्टैम्प उनका कंपनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रूफ. ओके, the sample again I have included in the description box. Live project format 2 is there just for your reference. आप देख सकते हैं यहाँ पे on top लेटर हेड इज देयर, नीचे प्रॉपर सिग्नेचर है और स्टैम्प है, ये सारी चीजें हैं. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट और एल्स यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन लिंक. तो ये था लाइव प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट. तो पहले था टाइटल पेज, उसके बाद प्रोफोमा और लाइव प्रोजेक्ट इफ यू आर डेवलपिंग. अगर लाइव प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा कॉलेज के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट. दिस इज कंपल्सरी स्टूडेंट्स, बिकॉज कोई ना कोई एक फॉर्मेट आपको होना ही चाहिए, या तो लाइव या कॉलेज. सो इवन दो यू हैव लाइव प्रोजेक्ट फॉर्मेट, कॉलेज सर्टिफिकेट फॉर्मेट इज मस्ट. यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन प्रॉपरली, लाइक कितना साइज चाहिए, कौन सा फॉन्ट चाहिए, बोल्ड चाहिए, ऑल कैप्स चाहिए. सो ऑल द थिंग्स जस्ट यू हैव टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स. कॉलेज लोगों के यहाँ पे कॉलेज का लोगो आएगा. देन रिस्पेक्टिव थिंग्स, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम एंड ऑल. सो जस्ट रिप्लेस द थिंग्स and then your college certificate is ready. So this is just a sample format. Of course, you have to refer the college certificate format given by your college itself.
कॉलेज सर्टिफिकेट के बाद बारी आती है डिक्लेरेशन की। तो डिक्लेरेशन का टेक्स्ट जो मैंने यहाँ लिखा है, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, तो जो भी प्रोजेक्ट आपने डिफाइन किया है, डेवलप किया है, उसका नाम। अब डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन एक ऐसी चीज है कि आप खुद बता रहे हो कि ये प्रोजेक्ट मैंने डेवलप किया है। आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम आउटसाइड। मैंने कहीं से भी इसको लिया नहीं है, किसी और का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरा अपना खुद का प्रोजेक्ट है। सो दिस डिक्लेरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर साइड. So again, fill in the blanks you can do. The sample is there in front of you with the size and font, everything I have written. So accordingly, you can make the changes. Name and signature of the student. Your name should come, and on above that, your signature should come. Okay. So declaration page is this one. आफ्टर डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट पेज, यहाँ पे आप सबको थैंक यू का पैराग्राफ लिखेंगे। ये 2 से 3 पैराग्राफ में होगा। यहाँ पे राइट फ्रॉम आपके प्रिंसिपल से लेके मैनेजमेंट से लेके टिल फ्रॉम योर वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, योर प्रोजेक्ट गाइड, देन योर सब्जेक्ट टीचर और मे बी लाइब्रेरियन और योर फैमिली मेंबर्स। तो जिन्होंने जिन्होंने आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हेल्प किया है, आप उनको थैंक यू या उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। सो हाउ यू विल एक्नॉलेज? So all the things I have written properly over here. You can take help of these formats and then you can write the acknowledgement message. Acknowledgement का जो भी मैसेज होगा वो भी मैंने सैम्पल मैसेजेस, सैम्पल एक्नॉलेजमेंट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओके, so that was acknowledgement. So let's recap what we have learned in this video. We have learned about project topic selection, then types of projects such as live and self-defined. Title page format also we have seen. Uh, then proforma, that is approval from the project guide. Live company certificate, if you have any, which should be on the company's letterhead. College certificate is very, very compulsory, and format I had explained you. Then declaration, declaration मतलब self declaration है student का. और acknowledgement मतलब thanks giving paragraphs है. So ये सारी चीजें सीक्वेंस में जाएंगी और अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट का डेजर्टेशन कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीडियो में. इन नेक्स्ट वीडियो we shall focus on roles and responsibilities and abstract. So that's all for this video. Thank you for listening it so patiently, and please like and subscribe our channel for more and more such videos. And thank you so much from Team Technolytics. Take care.